Hello everyone, this is Tapasya and I welcome you all and I thank you all for joining this particular channel. This particular thing is very crucial that we are going to learn today. It is about the Maharashtra 12th State Board English paper, which is going to start on 21st of Feb. And of course, many of the students who have not yet prepared or who are preparing or who are well prepared, everybody is going to get benefited by this particular video. This was a very first thing. Second is that when I start today, I will be dealing with a very basic thing today, how you need to understand this particular paper pattern. We tend to ignore what exactly is going to come in our exam. But this is something that we should not ignore at all, or we should not leave. The very first thing that teachers should make students understand is what is the paper pattern for English. Once they know that, okay, question number 1 is a seen passage, question number 2 would be the unseen passage, it grips up their mind and they can move forward with it, right? I'll be switching my language, don't worry. I'll turn it from English to Hindi, Hindi to English. Let's begin with our very first slide by understanding the paper pattern for your 12th standard, and then we'll pick up one topic. फिर हम कोई भी एक टॉपिक लेंगे जिस पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एग्जैक्टली आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कैसे मिल सकते हैं. यस, आपने करेक्ट सुना है, इंग्लिश में भी हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है, तो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर एनीबडी to score full out of full in any of the particular, I would say, except the passages. But if even those passages or the answers are absolutely correct, so there is no point that anybody could change your marks or cut your marks. Remember, whatever you write, जो भी आप लिखते हो अपने पेपर में, वो बिल्कुल आपके मन का होना चाहिए. मन का मतलब स्टोरी से हटके नहीं होना चाहिए. जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो पुराने मेथड के तरीके से अपने पैसेज में ढूंढ ढूंढ के उसके बाद आंसर नहीं लिखना है. बी प्रिसाइज, जितना क्वेश्चन है उतना ही आंसर होना चाहिए. सपोजिंग 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क के इतना ही आंसर लिखो. आपको एक पेज भरने की जरूरत नहीं है और अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंस ये बहुत ही लेंदी है, इसीलिए. ठीक है, नाउ on the screen you could see the very first thing title that I've put up, that is understanding paper pattern, isn't it? The first very question that you're going to get for your 12 marks is your seen passage. Seen passage is what? जितने भी chapters और I would say जो unit 1 है हमारा, वो हमारे seen passages है. प्रोज, ठीक है, उनमें से कोई भी एक सीन पैसेज आपको आएगा. इट इज वेरी सिंपल. सी, इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, हम सबको स्टोरीज पसंद है, इजंट इट? तो आप उस चैप्टर को स्टोरी के फॉर्म में पढ़ो, उनके कैरेक्टर्स पढ़ लो, सेटिंग्स पढ़ लो, स्टोरी पढ़ लो. all the stories or all the prose written in this particular the chapters are absolutely amazing. कोई भी बोरिंग नहीं है. तो हर चीज, इवन एस्ट्रोलॉजर्स डे, वहां से लेके जो भी हमारा एंड वाला चैप्टर होगा उसमें भी कोई भी ऐसा नहीं है. तो आपके पास स्किप करने का ऑप्शन नहीं है, आप एक भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते.
आपको हर चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए, आपको हर चैप्टर का कैरेक्टर पता होना चाहिए, आपको हर चैप्टर की सेटिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इट बिकम्स इजियर, इट्स जस्ट अ स्टोरी। रात को सोने से पहले भी अगर आप वो चैप्टर रीड कर लो, अच्छे से रीड कर लो, तो आपको याद हो जाएगा, राइट। 12 मार्क्स इज गिवन फॉर योर सीन पैसेज। 12 मार्क्स मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, ओके। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के हिसाब से ही आंसर लिखना है, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स। कोशिश करना है कि पैसेज तो ऑफकोर्स आपको दिया हुआ है, हो सकता है उसमें आंसर भी हो, बट इफ यू मॉडिफाई इट, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, it becomes much more simpler for a teacher or an examiner to understand कि ये बच्चे को समझ में आ गया है। इसी वजह से उसने अपनी मर्जी से लिखा है। तो अपनी मर्जी से लिखने का मतलब ये नहीं कि हम रॉन्ग लिख दे, ओके। योर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस शुड बी करेक्ट, आपके स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए, आपने जो कैरेक्टर लिखा है वो करेक्ट होना चाहिए, isn't it? Then we have our second, that is 1B, okay। 1B में क्या है? सीन ग्रामर। सीन ग्रामर इज व्हाट? ग्रामर तो ग्रामर ही होता है, पर सीन पैसेजेस में से ग्रामर आएगा। नॉट रिक्वायर्ड कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो ग्रामर दिया गया है आपको वही ग्रामर आने वाला है, नो, नॉट एट ऑल। सीन ग्रामर का मतलब होता है कि खाली सेंटेंसेस आपको उसमें से पूछी जाएंगी, बाकी ग्रामर तो ग्रामर ही है। बट रिमेंबर, ग्रामर हमने बचपन से पढ़ा है, हम डरते जरूर है ग्रामर से, डोंट वरी। उसके लिए एक और से वीडियो जो है लेक्चर में लेने वाली हूँ आपका, जो बेसिक ग्रामर में सिखा सकती हूँ थोड़े दिनों में, वो एब्सोल्युटली मैं पुट करूंगी, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी होगा हमारे लिए। बट ये समझने वाली बात है कि हमको क्या करना है एग्जैक्टली exactly। तो सीन ग्रामर में हमारे पास है 4 मार्क्स, मतलब 4 सेंटेंसेस आएंगे फॉर ईच मार्क्स। तो हमारा जो पहला हो गया, पहला जो हमारा ग्रामर सेंटेंस है, या यू कुड से पहला जो क्वेश्चन नंबर 1B है हमारा, ठीक है, वो हमारा 4 मार्क्स का हो गया। नाउ सी, हमको पूरे मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, रिमेंबर दैट, ओके। जब हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो हमको क्या होगा? ग्रामर में स्कोर करना है, isn't it? ग्रामर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। प्लीज ऐसे सोच के मत चलो कि ग्रामर बहुत डिफिकल्ट है और शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये तो मुझे छोड़ना ही था एग्जाम में। नो, दैट इज इनकरेक्ट, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं छोड़ना है एग्जाम में, आपको जो भी आता है आप वो लिख के आएंगे। एंड ग्रामर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, हमने ये बचपन से पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज ऑफ कोर्स यू ऑल नो, आउट ऑफ सिलेबस हमारे पास एक पैसेज होगा हमारे सामने, पैसेज को थरोली पढ़ो, उतना टाइम दो 10 मिनट्स का, ठीक है। पेपर लेंदी है पर हमें मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। तो उसको 10 मिनट्स देके बहुत अच्छी से पहले रीड करो, उसकी स्टोरी समझो, समझने के बाद उसके आंसर्स दो। इट इज सेम एज योर सीन पैसेज। सीन पैसेज आपको बहुत इजी होना चाहिए बिकॉज आप पहले ही पढ़ के जा रहे हो। अनसीन पैसेज को उतना टाइम दो बिकॉज वो न्यू है आपके लिए। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 रीडिंग्स टू इट। इट इज ऑल राइट अगर आपको एक रीडिंग में समझ में आता है तो, बट अगर नहीं तो आप प्लीज 2 रीडिंग्स कीजिए अनसीन पैसेज की, and you can score good in your unseen passage too. That is very interesting. Remember 2A जो हमारे unseen passage में है, 2A and 2B ये होगा, ठीक है। पहला जो पार्ट होगा उसका वो है समरी राइटिंग, जो 3 मार्क्स का आएगा, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम, ओके। समरी राइटिंग में भी आपको पॉइंटर्स मिलने वाले हैं। सी, पेपर में ही आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो समरी राइटिंग में ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको अगर 5 पॉइंट्स भी मिल गए तो इलाबोरेट ही करना है आपको। 3 मार्क्स का है तो कम से कम 10 सेंटेंसेस, 8 to 10 सेंटेंसेस लिखोगे, एक पैराग्राफ जितना लिखोगे। समरी का मतलब होता है हम हमारे मन से कुछ ना लिखें, ठीक है।
पैसेज में जो भी स्टोरी लिखी है या पैसेज में जो भी हमें नॉलेज मिल रही है, हम उसको इजी वे में मेथड करके उसके बाद समरी में लिखे उसको। ठीक है, तो समरी राइटिंग का मतलब, और 3 मार्क्स है ये सिर्फ। ठीक है, तो 3 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि हम 2-2 3-3 पेज भर दे। नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 1 पैराग्राफ और 10 sentences आर मोर देन इनफ इफ यू राइट इट करेक्टली। सब कुछ उसमें आ जाना चाहिए। देन इज आर माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग आपको टीचर से सिखाई होगी। इट इज वेरी इजी। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको ट्री डायग्राम बनाना है। आज का टॉपिक हमारा माइंड मैपिंग है, बिकॉज माइंड मैपिंग में 3 out of 3 मिलता है। ओके, तो इसमें क्या है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, इट इज जस्ट माइंड मैपिंग। ट्री डायग्राम जो हमने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, तो ट्री डायग्राम का क्या मतलब है कि हम उसकी ब्रांचेस बनाएं। ट्री, ट्री का क्या मतलब होता है, इट्स जस्ट अ ट्री इमेजिन। ओके, दैट डजंट मीन कि आप ट्री बनाओ। ओके, उसमें स्ट्रक्चर, शेप, साइज कुछ भी हो सकते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ट्री में क्या होती है, मेजर ब्रांचेस होती है और उसकी ट्विग्स होती है। बस वैसे ही हमें आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस पर आंसर्स लिखना है। ठीक है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। माइंड मैपिंग कभी छोड़ना नहीं, माइंड मैपिंग में 3 out of 3 मिलता ही है। ओके, देन कम्स आवर सीन पोएम। सी, पोएम वापस सीन ही है, अनसीन पोएम आपको नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पोएम से डरो और ये सोचो कि मुझे तो नहीं आती है पोएम एंड आई एम अनविलिंग टू राइट द पोएम्स एंड ऑल। सी, पहले ना, व्हेन वी स्टार्टेड विद द activity sheet, the poem was, scene poem was for 10 marks. Now it has changed to 8 marks because they have added a scene poem with appreciation. So आपको 2 पोएम आने वाली है। फर्स्ट पोएम वुड बी फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, सेकेंड पोएम वुड बी फॉर अप्रिसिएशन राइटिंग, क्रिटिकल अप्रिसिएशन। ओके, so also we'll learn about critical appreciation which is for 4 marks. Now critical appreciation 4 marks you're not going to get, पूरा का पूरा 4 marks नहीं मिलेगा। बट सीन पोएम में अगर वो 4 आंसर्स आपके करेक्ट हो गए तो आपको 8 out of 8 मिल सकता है। ठीक है, तो see how they have balanced everything. The board has prepared such an amazing paper pattern for you. अगर आप एक जगह स्कोर नहीं कर सकते, दूसरा जगह उन्होंने दिया है आपको स्कोर करने के लिए, राइट? देन कम्स आवर फोर्थ, दैट इज राइटिंग स्किल्स. I'll talk about writing skills which is for 16 marks, remember. ऐसे आपको 4 राइटिंग स्किल्स लिखने हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है हमें कि हमें 4 राइटिंग स्किल्स लिखने, पता नहीं क्या क्या आने वाला है। फिक्स्ड है, पैटर्न फिक्स्ड है कि क्या आने वाला है। ठीक है, बट आपको समझने की जरूरत है। टारगेट जस्ट 1 out of each. I'll let you know. We'll just move forward. सबसे डिफिकल्ट आई वुड से और सबसे इंपॉर्टेंट और इजिएस्ट थिंग भी है ये, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे नॉवेल्स है। 3 नॉवेल है और एक जो है पार्ट वो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है हमारा। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल 4 मार्क्स का है, इसमें सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे। बट 5B, 5C, 5D मैंने आपको नाम भी लिख के दिए हैं। टू सर्व विथ लव, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, साइन ऑफ 4। ठीक है, ये नॉवेल्स पढ़ना बहुत 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 जरूरी है आपके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर नॉवेल. Okay, these 3 novels are going to give you altogether 12 marks, which is not at all less. तो अब इसमें मार्क्स कहाँ आपके मिलने वाले? 5A हिस्ट्री ऑफ नॉवेल 4 मार्क्स आपके हाथ में होने चाहिए बिकॉज इट्स एन एमसीक्यू. ओके, अगर एमसीक्यू नहीं भी आता है तो ट्रू और फॉल्स आएंगे, मैच द पेयर आएंगे। ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप्स कुछ भी आ सकता है आपको, right? But it will be objective only, not subjective. But 5B, 5C and 5D will be subjective. Clear with it? Let's talk about writing skills now. ठीक है, 4 writing skills आपको लिखने हैं. 4A will have virtual message. See, आपको हर इसमें 3 options मिल रहे हैं, 3 options. It is too much to ask from the board who is setting the paper. They have made it so simpler for you. ओके, तो 4A में आपके पास 3 ऑप्शन है, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन. ये तीनों में से आप कोई भी एक चीज पढ़ सकते हैं. टारगेट दैट, सपोजिंग आप वर्चुअल मैसेज पढ़ोगे, बिकॉज आई यूज्ड टू टीच माय स्टूडेंट्स वर्चुअल मैसेज ओनली.
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन को थोड़ा लेंदी बनाना पड़ता है. तो राइटिंग सेम थिंग छोटे में एंड देन यू आर गेटिंग 3 मार्क्स आउट ऑफ इट, तो उसमें क्या रॉन्ग है? वर्चुअल मैसेज हैव फ्यू पॉइंट्स एंड फ्यू फॉर्मेट्स. ओके, जो ऑफ कोर्स हम पढ़ेंगे. वो फॉर्मेट के हिसाब से भी अगर आपने लिख लिया या वही पॉइंट्स आपने मेंशन कर दिए, तो यू आर द वन हु इज गोइंग टू गेट 3 मार्क्स. राइटिंग स्किल्स में हम 4 आउट ऑफ 4 नहीं देते हैं. ओके, यू आर गोइंग टू, दैट इज a mandatory cancellation that we do. Then it is 4B. 4B में see again you have 3 options. You can go for either email writing, report writing, interview writing, and go for any one thing. Stick to one thing. Decide कि क्या करना है. I usually teach email writing and interview writing. Okay, report writing is something which is very subjective, तो सब लोग नहीं लिख पाते. Even email writing is subjective, but format पे कुछ marks मिल जाते हैं. बट इंटरव्यू राइटिंग हैज बिकम सच अ सिंपल थिंग. वो आपको एक बॉक्स बना के देते हैं, उसमें खुद पॉइंट्स लिख लिख के दे रहे हैं, एंड यू जस्ट नीड टू इलेबोरेट द सेंटेंस. आपको वो भी नहीं आएगा तो आप इंटरव्यू राइटिंग, मतलब यू पीपल हैव नॉट लर्नड एट ऑल. आई वुड से इट लाइक दैट. Okay, then 4C is again 3 options for you: speech writing, comparing, and expansion of idea. Speech again is subjective. Actually all 3 of it is very subjective, but comparing is something which is a bit simpler, क्योंकि हम compare करते रहते हैं, right? Comparing is equal to anchoring, right? तो जो हमने पहले compare किया हुआ है वही एक चीज को अगर हम learn कर ले और बाकी सब चीजों में situation based हम change करते रहे, तो comparing becomes equally easy. Or either if you write speech writing because you have learned it since many years, so speech writing is also okay. Again, when we come to 4D, that is review, block, and appeal. Remember, all the 3 of these are very, very simple. Okay, you just need to read it. Don't worry, we'll be targeting each one of it slowly and steadily, and we'll be concentrating only on one. Okay. So this was something about understanding your paper pattern. You should remember your paper pattern thoroughly. First would be your scene passage, then comes your scene grammar, then comes your unseen passage. In your unseen passage, you are going to get summary writing, mind mapping. There would be scene poem again. Scene poem will have your appreciation again. Then you have writing skills, for which 4 writing skills you have to write, out of which 3 options would be given and you have to write just one option. Okay, then you have your novel section, that is 5.A, 5.B, 5.C, 5.D. 5.A would be history of novels, only MCQs would be asked, and rest all 3 you need to learn because there will be subjective questions that would be asked to you. Okay, now today's topic would be mind mapping. Okay, which is one of the simplest thing, and if you remember, mind mapping जो है हमारे पास 3 marks का आता है, and ये 3 marks आपको मिलने ही चाहिए. Okay, उसको इतनी प्रैक्टिस करो, इतना उसको पढ़ लो कि देखो, सी देयर इज नॉट मच टॉपिक्स दैट एवरीबडी हैज. तो आपके पास जितने टॉपिक्स है आप वो भी सब पढ़ पढ़ के अपनी मर्जी से बनाओगे तो इट इज वेरी इजी. Okay, now I have given you few further branches. I am not sure कि आपको पेपर में आएंगे ही. It is not at all sure. I cannot give you any surety. Only the question would be asked और आपको उसके ऊपर mind mapping बनाना है. But still I have given it to you so that you could understand that how we need to write. See, if we read the first question, develop a mind mapping frame design to show the benefits of games and sports to the students. तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? The benefits of games and sports. You can keep the help. You can take the help of the following points in order to develop each of them into further branches. तो further branches के लिए तो हमें मिल गया. See, tree diagram हो गया. उसमें क्या होता है? ब्रांच होती है और ट्विग्स होते हैं. ब्रांचेस मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है. ट्विग्स आपको बनानी है. ट्विग्स मतलब वो छोटे छोटे ब्रांचेस जो होती है उसे हम ट्विग्स बोलते हैं. I've given you one example. I've taken it from shala.com and see, center में अगर आप देखोगे तो you will see कि how here benefits of game and sports.
ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स टू स्टूडेंट्स। फिर हमारा क्या है, गिव मी 2 minutes। Okay, so next would be that see branches जो मैंने already दिए हुए थे, that is fitness, attitude, killer instinct, group behavior, will to win। ठीक है, ये तो ब्रांचेस मैंने दिए हुए थे आपको, बट अगर इन केस ये नहीं आता है तो ये ब्रांचेस आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ओके, सो बेनिफिट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेनिफिट क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, राइट तो एडवांटेज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या होगा, फिटनेस तो ऑफ कोर्स होगा, अगर आप रोज गेम खेलोगे तो इट बिकम्स योर एटीट्यूड टू। किलर इंस्टिंक्ट इज व्हाट, आपको धीरे धीरे वो गेम के बारे में जो समझ और नॉलेज है वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी दैट नो बडी कैन बीट यू। देन कम्स योर ग्रुप डिस्कशन, ओके, sorry, group behavior. Group behavior is what, when you play with so many people, what happens is you know everybody's behavior, you know your behavior। ओके, जब मैं इतने लोगों के साथ खेल रही हूँ या खेल रहा हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। विल टू विन, ठीक है, ऑफ कोर्स इफ यू आर स्पोर्ट्समैन तो विल टू विन तो सबका ही होता है। नाउ व्हेन वी कम टू फिटनेस, सी मैंने 3 ट्विग्स बनाई हैं, ये तो हमारी ब्रांचेस थी, अब ट्विग्स। तो बॉडी फिटनेस किसकी होगी, 3 चीजों की होगी, बॉडी की होगी, माइंड की होगी, इम्यूनिटी की होगी। सेम गोस विद एटीट्यूड, एटीट्यूड में क्या है, टीम स्पिरिट होना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। अब इसके आगे भी अगर आप नहीं लिखते तो भी चलेगा, बट अगर आपको और बढ़ाना है तो यू कैन राइट सोशल डेवलपमेंट, लीडरशिप, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और यू कैन कंबाइन एवरीथिंग, ये सब कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देन किलर इंस्टिंक्ट इज व्हाट, इंस्पिरेशन, डिसिप्लिन एंड फोकस। ठीक है, तो किलर इंस्टिंक्ट्स becomes what, our discipline, our focus and inspiration। then comes a group behavior which is conflict resolution and empathy। ठीक है, then comes what, our will to win, right। सी will to win में मैंने आपको दिया है medals and trophy, dynamic personality। so everything that you are writing, everything that you are doing, everything you are preparing, तो हमने ट्री नहीं बनाया है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो ट्री बना देते हैं, ट्री डायग्राम समझ के, क्योंकि टीचर ने बोला था ट्री डायग्राम है तो ट्री बनाने का, नो, ट्री नहीं बनाने का, शेप्स, साइज, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, जैसे हमने पहले ओवल लिया है, बाकी में देखो ब्रांचेस बिल्कुल सेम है, फिर हमारी ट्विग्स जो है उसमें जो शेप है वो बिल्कुल सेम है, तो इट शुड बी वेरी नीट, नीटनेस के भी मार्क्स होते हैं, प्लीज डू रिमेम्बर। ओके, देन I have one more thing, okay, one more question for you। Develop a mind mapping frame designed to show the development in your personality seen within yourself in last 5 years। You can take the help of the following points in order to develop each item into further branches। ठीक है, हमें क्या बनाना है, to show the development in your personality seen within yourself in 5 years। last 5 years से आपने क्या अपनी personality में changes किया है या develop किया है। This will be the homework for you। branches मैंने बनाए हैं आपके लिए, पर इसके ट्विग्स वाला जो पार्ट होगा वो आप कंप्लीट करोगे, इसलिए मैंने ट्विग्स लिखा नहीं है। डू कमेंट योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन so that I could reply back to you and it will be very simple for you। So you can just take down your question for this। Okay, then I have a next one for you, that is benefits of music। benefits of music क्या है, see, in sports, hymns, to take care, improve memory, love songs, entertainment।
म्यूजिक के साथ और भी अगर आपको कोई पॉइंट्स याद आते हैं आप वो भी लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी कि इतने ही पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्ट रहना है। आपके पॉइंट्स अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है तो यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स, ठीक है। नाउ ट्विग्स, हमारी ट्विग्स क्या है, एंटरटेनमेंट पे आओगे तो रिमूव स्ट्रेस, स्ट्रेस रिमूव हो गया तो इम्प्रूव मूड, तो सी इट्स व्हाट एन ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, राइट। जब स्ट्रेस रहेगा तो मूड खराब होगा, जब स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आपका मूड भी इंप्रूव होगा, तो उसके 2 पॉइंट्स हो गए। इन स्पोर्ट्स कनेक्ट्स क्राउड, इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस, जब क्राउड के साथ कनेक्ट कर लिया तो ऑफ कोर्स आपका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा ही, इजंट इट। तो म्यूजिक और स्पोर्ट्स, टेक फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ द म्यूजिक दैट यू वांट इन स्पोर्ट्स, take for example this bhag milka bhag wala any song, okay, when you listen to these songs and you really are very much a person who is into sports or who is into any of the things, ठीक है, वो म्यूजिक जो होती है वो सबको हिला देने वाली होती है, isn't it। सबको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे भी मेरी लाइफ में कुछ करना चाहिए जस्ट बिकॉज म्यूजिक में उतनी पावर थी, तो इट इज व्हाट कनेक्टिंग एवरीबडी, इट इज व्हाट इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, okay। then comes your hymns is what भगवान के गाने, ठीक है। तो वर्शिप टू गॉड, जब हम वो सुनते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, पीस ऑफ माइंड होता है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो व्हाट डू, वी टेंड टू पुट अप फ्यू रिलीजियस सॉन्ग्स, ठीक है, तो उसको हमने क्या लिखा है, हीम्स। देन इट इज टू टेक रेस्ट, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक इज व्हाट, हम कान में लगा लेते हैं रात में और उसके बाद हम रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद इट इज इट्स अ गुड स्लीप, फॉर गुड स्लीप एंड हेल्दी बॉडी, जब आप अच्छे से सोओगे तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। देन कम्स इम्प्रूव्स मेमोरी, इम्प्रूव्स मेमोरी में क्या है, हेल्प्स इन स्टडीज। देन यू हैव लव सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स में क्या है, it develops a bond, okay, it creates a very good relationship with within a couple, okay। So see, when you prepare something with lots of answers and lots of informative information into it na, तो everybody feels कि yes this person had really worked hard onto it। इतना पूरा लिख दोगे तो कौन आपका 3 out of 3 ले सकता है, nobody can take your 3 out of 3, okay, provided आप spelling mistakes ना करो, राइट। एंड इट शुड बी वेरी वेरी क्लीन, रिमेंबर पेन से ड्रॉ मत करो, अच्छे से थोड़ा ड्रॉ पेन से भी करोगे तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यूज योर स्केल, ओके। यूज योर माइंड व्हेन यू यूज इट, जब लगता है कि नहीं बहुत सारे ये शेप्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं स्क्वायर बना लूं या रेक्टेंगल बना लूं, जो भी आपको इजी पड़े आप वो वाला शेप बनाइए, ठीक है। देयर इज नो कंपल्शन ऑफ शेप्स फॉर यू। नाउ टेक इट, सी सिंस आई वाज सेइंग ट्विग्स, ट्री डायग्राम का मेन आइडिया क्या होता है कि एक ट्री डायग्राम हो, मतलब उसका मेन आइडिया हो, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो बड़ी बड़ी, ठीक है, और उसके बाद उन ब्रांचेस में ट्विग्स हो, मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस हो, ठीक है। दिस इज व्हाट योर माइंड मैपिंग। नाउ इफ यू टेक लीडरशिप इन योर माइंड मैपिंग, सो आवर टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ अ लीडर, ठीक है। सी इट्स बिकमिंग व्हाट नाउ, it is becoming what now, that leadership, लीडर, लीडर में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर, सपोर्टिव, इंस्पिरेशनल, ऑनेस्ट, हाई कमिटेड, पैशनेट, रिफ्लेक्टिव, डिसिसिव और क्रिएटिव, ठीक है। इसमें इन्होंने सब ब्रांचेस नहीं दिए हैं, इजंट इट। जब ट्विग्स नहीं है तो ब्रांचेस बढ़ाओ, जब ब्रांचेस है और ट्विग्स भी आ सकते हैं तो इट्स ऑल राइट। तो इसमें कितने पॉइंट्स हो गए हैं आपके पास, 8 पॉइंट्स हो गए हैं। तो 8 to 10 पॉइंट्स जब आप लिखोगे यू विल गेट 3 out of 3 एंड सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव प्रिपेयर्ड इट, इट्स सो सिंपल, सब सर्कल सर्कल में बना के उन्होंने लिखा है एंड जस्ट वन वन वर्ड, बट वो वन वन वर्ड्स भी कितने इंपॉर्टेंट है, इजंट इट। देन इफ यू टेक अबाउट बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो इट इज व्हाट, स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के साथ क्या होगा, आइडिया, एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्म, प्लान, गोल, ठीक है। अगेन वर्ड्स, वर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, राइट।
So this was about your mind mapping. I have already given you the homework for today. I request everybody to go through this particular PPT again and write down the answer, and you can send it or comment directly onto it. Okay, I will reply on for it. And if you have any doubts, let me know. And tomorrow we'll have a next topic, that is history of novels. I am only targeting on few things. See, I'll target on everything, but आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, right? But जो important चीजें हैं मैं उन पर तो फोकस करूंगी ही. We'll start with history of novels. Okay, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स के 4 मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए. 3 मार्क्स आपको माइंड मैपिंग में मिल गए, 4 मार्क्स आपको हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में मिलेंगे. मतलब ये 7 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे. Isn't it? Good luck to every student who is preparing for their exam. Okay, and if you have any doubts, of course you can comment it down. Please do subscribe it and let other students also come up with this particular PPT. उनको भी help करने लगाइए और उन्हें भी बोलिए कि ये सब वो PPT देखे, so that उनके लिए वो beneficial रहे. ठीक है? Okay then, चलो, bye bye.